Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all of you in this gathering. Thank you very much for your participation. I am Dr. Shahbaz Ahmed. I am working as an assistant professor of mathematics at Abdul Salam School of Mathematical Sciences here. I completed my PhD in image processing from King Fahd University of Petroleum and Mineral, Saudi Arabia. This is my short introduction. I will be with you for this course through the sessions, and there are also my research students. They will also help you during the lectures. Okay, let's formally start this course, Physics Informed Neural Network from scratch. This is the era of artificial intelligence, and everyone wants to do something related to here. So this is the era of artificial intelligence, and everyone wants to do something related to AI. And this is one of the popular topic, physics informed neural network. You may familiar to this one. So what is new in this course? In a traditional course, what we do, we only use library trained, pre-trained models, less mathematical work, and limited understanding. In this course, we drive everything from scratch: forward propagation, back propagation, uh, stochastic gradient descent, ADAM, optimization, and build in completely from scratch and implement it on Python. So what you do, you will understand the mathematics, with write the code and solve your scientific problem. So this is the roadmap. Right now we are at the zero stage, and I will try my level best that you can reach to the seventh stage in this short period of time. The last stage, you will able to solve your underlying partial differential equation with the help of this physics informed neural network. But it is up to your hard work also. It is up to you how much you will do for this one. And one more thing, I will start at the zero level. And what we do, uh, we start here gradually, the topics becoming harder and harder. Most of you then feel not comfortable. You may give up this one. Okay. We will reach at the peak. After the peak, everything will be easy. Okay. This is the learning environment. So whenever you feel you are here, don't give up. Just motivate your heart that all is well, और डर के आगे जीत है. तो आपने यहाँ तक जरूर जाना है, ठीक है. उसके बाद बहुत इजी है लाइफ. स्टार्ट में भी बड़ी इजी है, आप बड़े हैप्पी मोड में होंगे, देखेंगे. लेकिन आई वांट यू, एट these stages you may feel it is little hard. Why? First we start with the mathematics. Okay, that is easy part. But we have to implement it on a Python. Okay, that is the crucial part, because Python is not a subject, it's a language. You have to understand the linkage between mathematics and the Python. Python is a machine language, not a human language that you may understand. So you have to think like a machine at that stage. That's why I am giving you motivation. Don't give up here. Okay? And I guarantee you, once you reach here, everything will be easy. Okay, what is prerequisite? You should have some knowledge of these subjects: linear algebra, multivariable calculus, then optimization technique, probability. Mostly it is required when we do probabilistic neural network or our model
has a probabilistic behavior. For example, if we do classification, but here we don't do classification, you can leave this one, and some knowledge of numerical method, and main thing Python. Okay, to implement we need Python. Uh, why we need Python? The reason is this. For example, you are doing pure mathematics. What you need? You need a paper and pencil, and then there is your own effort. Okay, but when you do applied mathematics plus this, you need at least a calculator. Okay, so this is another thing, another level. When you do something related to AI, you need some programming language for programming. So most efficient is Python. That's why we prefer Python. You can do this in other language, for example, in MATLAB. But there is a restriction. So mostly people do Python. That's why we will use Python. And if you are not aware of the Python, don't worry, because I have to start from the zero level. And I will not explain you the whole Python. Python is like a C. I will just focus myself what we need for physics informed neural network. Okay. And we have also limited time. I cannot explain this one as a whole lecture. So for Python, there are some editor you can download. I am not explaining that one. Easy way, you can use Google Colab. Okay, this is an online platform. I will also use Google Colab. Okay, let us start. So this is, most of you already know, we have data sciences, we have artificial intelligence, inside we have machine learning, then deep learning. The crux is artificial neural network. ANN, or simply we say neural network. So where is physics informed neural network? Anyone in this graph or in this nested loop where we are, physics informed neural network, if you have some idea. Any idea? In which circle? Deep learning, machine learning, or inside artificial neural network? Deep learning. Okay. So it is inside, but it has a separate structure. With this artificial neural network, you need physics. Then it's become physics informed neural network. But some student, when they understand this one, what they feel, they only need mathematics. It is more than a mathematics. If you don't know the physics of your underlying problem, you will never ever able to create a efficient physics informed neural network to solve your problem. So not only you need the structure or understanding of artificial neural network plus the physics of your problem. You can find the answer when I reach to this stage. So physics is important here. So when we add some physics with the neural network, we end up with the physics informed neural network. Okay. So what is artificial neural network? Uh, Allah has created biological brain. That is, we have, everyone have artificial brain. We have different level of brain. Maybe my brain is not better than your brain. Maybe your brain is less better than any other guy. Okay. So in artificial neural network, sorry, in a biological brain, we have
this structure of the neuron. We are not studying this one. This is a biological topic related to biology. And we don't want to understand this one. So, what is artificial neural network? It is a replica of this one. This is made by scientists. It is artificially a biological brain simply. Okay. But it has a synchronized structures. It has input. It has output. In between, it has hidden layers of a neuron. We call them neuron by comparing that one. Okay. So in our biological brain, how information pass? Information pass by energy. Okay. When we eat something, our metabolism create an energy that help to pass information from neuron to neuron. And in our artificial neural network, we don't have a metabolism, we have a mathematics. The energy of artificial neural network is the underlying mathematics. So this is, I am going to explain you how information pass from one neuron to other neuron with the help of mathematics. And after that, we will implement it on the Python. Here, so this is, we are going to study artificial neural network or simply neural network. So very simple problem because the topic is physics inform neural network, but most structure is related to neural network. So first we have to understand neural network, then we will add our physics and solve our problem. So this is a very easy example. Only one neuron and you have three input. So what mathematics is passing an information from input to output? This simple mathematics. You have input, you pass this input to neuron. So on this path, on each path, you have some information. We call them weights. Okay. Plus, this neuron himself has some extra information. We call it bias. So how this work? This input will multiply this weight, add some bias. Okay. If we have only one input, this is just x with multiply the weight on that path plus the extra information which our neuron has. So this will be the output. Okay. And this is simply a linear calculation. Linear, like a straight line. Okay. Sorry. Bias. Okay. Don't ask me question why. Okay. Why this is happening? Why why we have this? Your question is similar to this one. Okay. I don't know. I did not make this. Okay. I am just explaining you this mechanism. Okay. Uh, और एक और बात इसमें कोई बेइज्जती महसूस नहीं करनी सबको कह रहा हूँ ठीक है मैंने ये नहीं बनाया ठीक है ना मैंने इन्वेंट किया ना आपके लिए मसला खड़ा किया ठीक है अब मुझे अब ये कहीं ये न्यूरॉन गोल क्यों बनाया है अब मैं नहीं बस एक सिंबल है ठीक है बायस इतनी समझ रखें कि न्यूरॉन के पास भी अपनी एक इंफॉर्मेशन होती है इसको आप ऐसे कर लें अगर आपको इंटीग्रेशन का आइडिया हो जब हम रिवर्स करते हैं ठीक है डिफरेंशिएशन को हम अपने से भी कुछ ऐड कर देते हैं तो न्यूरॉन भी यही काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन पास करने के लिए ठीक है सॉरी मैं इतना आंसर दे सकता हूँ मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा आपको ठीक just like a constant of integration okay so we are reversing some information
So we cannot completely reverse it. So we add some calculation. So what I am explaining that how information pass uh, from one neuron and give you an output. So if you have input that will multiply with some weight, add some bias, and you will have that output. Now look at this example. So if these inputs have some mathematical value, numerical numbers, 1, 2, 3, and these path has these weights, 0.5, 0.7, 0.5, and plus bias has something in his pocket. So at the end, you will get 14.6. Okay. So now, parallel, we cannot do everything on the paper with the pencil. As I told you, we need programming language. Okay. सिंपल स्ट्रक्चर वी कैन डू लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मोस्टली न्यूरल नेटवर्क हम एक या दो न्यूरॉन से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते ठीक है इसमें एटलीस्ट 3 लेयर आपको रिक्वायर्ड होती है वेरी सिंपल प्रॉब्लम के लिए और एटलीस्ट 16 to 28 न्यूरॉन रिक्वायर्ड होते हैं आपको तो इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए आप पेपर पेंसिल पे नहीं कर सकते पेपर पेंसिल पे करेंगे तो हो सकता है एक हफ्ता एक महीना बैठे रहे सारी कैलकुलेशन करने के लिए इसलिए साथ साथ आपको कैलकुलेटर की तरह पाइथन लैंग्वेज समझ आनी चाहिए कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है तो अभी तो मैं नहीं कह रहा मैं आपको बताया कि इसमें पाइथन लैंग्वेज हमने यूज करनी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपको ये वर्क करना आना चाहिए तो काइंडली नेक्स्ट टाइम अपने लैपटॉप लेके आए और खुद ये कैलकुलेशन करें मेरे समझाने से मेरे तक की बात होगी उस दरवाजे से बाहर जाएंगे सारा कुछ इधर रह जाएगा तो आप ट्रेन होके जाएं इसके लिए अब अगर यही कैलकुलेशन अगर मैं पाइथन पे करूं तो यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि इसमें फर्क क्या है मैथमेटिकली हम ऐसे कर सकते हैं अब पाइथन में करने के भी डिफरेंट वेज हैं बहुत ज्यादा तरीके हैं एक सिंपल तरीका यहाँ पे मेंशन है कि इनपुट को आपको एरे में लिखना पड़ेगा ठीक है और लाइक अ वेक्टर ओके सो दिस इज x1 दिस इज x2 दिस इज x3 वेट भी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने पड़ेंगे 0.5 0.7 0.9 then bias 10 so what is happening here inside the python machine python is a language this is this part is the editor of that one and this one is the output or executable number यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो वेक्टर इस फॉर्म में अगर लिखूंगा तो ये तीनों वैल्यू जो है 1 2 3 ये स्टोर हो जाएंगी इस इनपुट वेरिएबल में इनपुट कोई बिल्ट इन चीज नहीं है ये मैंने अपना नाम खुद से नाम रखा है इनपुट आप इसके लिए आई लिख लें अपना नाम लिख लें लेकिन आपको आगे वेक्टर लिखना पड़ेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसमें ये क्या है लेफ्ट से राइट रीड करना पड़ेगा ठीक है सो 1 2 3 अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग x1 है x2 x3 है इस मशीन को नहीं पता मैं मशीन की लैंग्वेज में उसे लिख रहा हूं फिर मैंने वेट इस जो वेक्टर है इसका नाम वेट लिखा है आप w लिख लें आप कोई और नाम दे लें जो इक्वेशन के राइट साइड पे है ये सेंटेक्स है ये ग्रामर है इस पाइथन के लिखने की जो लेफ्ट पे है वो सिर्फ लेबल है जैसे मेरा नाम शहबाज है लेबल है तो ये लेबल दिया है ये लेबल क्यों दिया है बाद में मुझे इसे यूज करना है अगली स्टेज पे तो अगर मैं लेबल नहीं करूंगा तो उस लेबल को बाद में यूज नहीं कर सकूंगा इसलिए इसको मैंने लेबल किया है बायस कंप्लीट बायस लिखना है लिख लें आप बी लिख सकते हैं इसके और इसमें देखें इसमें वेक्टर नहीं लिखा क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्केलर को आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्केलर है स्केलर के बाद वेक्टर होता है वेक्टर से नेक्स्ट स्टेज मैट्रिक्स आता है और मैट्रिक्स से नेक्स्ट स्टेज टेंसर हो जाता है ठीक है ये इस तरह मल्टी डिमेंशनल बढ़ते जाते हैं अब आउटपुट है
सिंपली ये एक तरीका है, हजारों तरीके हैं ये करने के। मैंने सिर्फ जीरो स्टेज से लिखा है कि अब इसमें मैं क्या करा रहा हूं, ये जो इनपुट है इसमें ये तीन इंफॉर्मेशन स्टोर है। और एक और बात, पाइथन जो है ये हमेशा जो काउंटिंग करती है ये जीरो से करती है। बाकी मोस्टली लैंग्वेज जो है वो वन से काउंट करती हैं चीजों को। ठीक है, तो इसको अगर मैंने ये लिखा है ना, ये वेक्टर, और इसको फॉर एग्जांपल मैंने आई लेबल कर देता हूं। सो पाइथन या इस मशीन को बस इतना पता है कि पाई आई ऑफ जीरो, अगर इसका लेबल आई है ये क्वांटिटी है, आई ऑफ वन ये क्वांटिटी है, और आई ऑफ टू जो है वो ये क्वांटिटी। ये इस तरह अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली है इसने। ठीक है, तो जीरो से काउंट किया है। अब ये अब मुझे भी पता है कि इस मशीन ने इसको स्टोर कैसे किया इस डाटा को। ठीक है, अब मुझे पता है तो मैं उस पोजीशन को यूज करके अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूं। ये मशीन नहीं लिख रही, मैं लिख रहा हूं मशीन की लैंग्वेज में। इसी तरह अब ये वेट्स है, वेट्स में भी जो वेट्स ऑफ जीरो है उसमें स्टोर है 0.5, वेट्स ऑफ वेट्स ऑफ वन में 0.7, और वेट्स ऑफ थ्री में 0.9 सेव है इस मशीन के पास। और बायस क्योंकि स्केलर है उसमें एक ही है वो वेरिएबल। सो आउटपुट ये मेरा लेबल है, इक्वल मैंने लिखा है। और यहाँ पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, अगर आप नहीं भी यूज करेंगे, ये सिर्फ केयरफुल रहने के लिए मैंने यूज किया है। अब देखें इनपुट में जो पहली पोजीशन है उसको, ये स्टैरिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन है पाइथन में। ठीक है, उसको मैं वेट की जो पहली वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है इनपुट की उसको सेकंड वैल्यू से, थर्ड को थर्ड से करा। इनके बिटवीन प्लस का सिंबल मैंने लगा दिया, और प्लस एंड पे मुझे बायस भी चाहिए तो बायस मैंने कर दिया है। ये जब आप लिखेंगे पाइथन के एडिटर पे और प्रेस करेंगे, ये ऊपर रन में भी कर सकते हैं, या पाइथन का एडिटर हो तो इसके लेफ्ट पे कर्सर आ रहा होता है इस तरह का एरो का, उसको बस प्रेस कर देते हैं आप। ठीक है, सो जो भी लिखा होता है अगर वो सही लिखा है मशीन की लैंग्वेज में तो आपको नीचे एक आंसर मिल जाएगा। ये अगर आप करना चाहें करके देख लें। तो ये सिंपल सा कोड आपने बनाया है, और इसमें क्या इंप्लीमेंट किया है, ये जो सिंपल सी कैलकुलेशन है आपके पास, ये इसको किया है। अब खुद देख ले, मैथ में लिखने का तरीका डिफरेंट है और प्रोग्रामिंग में लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो प्रोग्रामिंग में लिखने का तरीका क्या है, उसकी ग्रामर का आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं कि मैथ वाला कॉपी करके सारा ऊपर पेस्ट कर देंगे वो मशीन समझ लेगी। मशीन कुछ नहीं समझेगी, वो एरर ही समझेगी। ठीक है, अब ये सिंपल एग्जांपल थी, वेरी बेसिक, सिंगल न्यूरॉन था, उससे हमने एक कैलकुलेशन की और पाइथन में इसे हमने देख लिया। अब ये थोड़ी और डिफिकल्ट हो गई। अब इसमें डिफिकल्टी क्या हुई है कि न्यूरॉन ज्यादा हो गए हैं। मैंने अभी बोला था एक सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करना हो कम से कम 3 लेयर चाहिए होती हैं और 16 न्यूरॉन चाहिए होते हैं। और अभी हमारे पास सिर्फ 3 न्यूरॉन और एक लेयर है। ठीक है, सिंपल सी आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इतना डाटा आपको चाहिए होगा बाद में। अब उसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड किया, सिंक्रोनाइज किया। पहले बताया कि बहुत से तरीके हैं लिखने के, लेकिन मैं सारे नहीं बता सकता। मैं सिंक्रोनाइज करके एक ही रास्ते पे चल के इसको कनेक्ट करूंगा फिजिक्स इनफॉर्म न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें हमारे पास ये 4 इनपुट हो गई हैं। ठीक है, और 3 न्यूरॉन हो गए हैं। सो पाथ आपके पास कितने बन गए, 12 पाथ बन गए। ठीक है, 12 वेट्स बन गए, और 3 बाइसिस हैं। तो आपको पता है एनर्जी क्या है यहाँ पे इनपुट से इस न्यूरॉन से पास होने की, कि ये हर इनपुट अपने पाथ के ऊपर जो वेट है उससे मल्टीप्लाई होगी और प्लस बायस करेगी। अब इस न्यूरॉन की जो फाइनल आउटपुट है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 4 पाथ आ रहे हैं, तो
हर पाथ का जो वेट है वो अपनी जो इनपुट है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, और बायस एक ही है एंड पे, सो वो बायस ऐड हो गया। तो 3 न्यूरॉन है तो 3 आउटपुट आपको मिल जाएंगी। अब ये सिंपल है, अब खुद इमेजिन करें अगर इधर मैं 16 या 20 न्यूरॉन लिख दूं तो मैं मैन्युअली एक एक करके नहीं कर सकता कॉपी पे। तो फिर हमें क्या चाहिए, थोड़ा मैट्रिसेस का कंसेप्ट चाहिए, बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स का, कि मैं जरूरी नहीं है सिंगल 1 बाय 1 करूं, मैं मैथमेटिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवा लेता हूं, वो भी यही मुझे रिजल्ट देगी। बस मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैंने रिजल्ट कैसे बनाया है। ये एक तरीका है बनाने का, डिफरेंट वे से भी ये बन जाएगी यही कैलकुलेशन। अब इसमें मैंने क्या किया है, न्यूरॉन के जो वेट्स थे, जो ब्लू वाला पहला न्यूरॉन था उसके वेट्स फर्स्ट रो में रखे हैं। आपकी मर्जी फर्स्ट कॉलम में रख लें, लेकिन आपकी खुद फिर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आउटपुट कहां पे जा रही है। अब ये ब्लू इसके वेट्स हैं, रेड सेकंड रो में है, और येलो थर्ड रो में है। और जो इनपुट थी वो मैंने वर्टिकल वेक्टर रखा है कि मल्टीप्लिकेशन कंफॉर्मेबल हो। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन 7 रूल से अगर करनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड का कॉलम हमने मल्टीप्लाई करना है। सो अगर तो अब अगर मैं इस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवा लूं प्लस बायस को ऐड करूं, तो मुझे ये तीनों आउटपुट मिल जाएंगी, ये भी ब्लू वाली भी, रेड वाली भी, और येलो वाली भी। तो मैट्रिक्स ने हमारा काम आसान कर दिया। अब जितना मर्जी बड़ा न्यूरॉन हो, जितना मर्जी बड़ा स्ट्रक्चर हो, हम मैट्रिक्स की हेल्प से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब इसको पाइथन में कैसे करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास। तो इसमें मुझे एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। जो पाइथन है इसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें से एक है नमपाई। नमपाई, और इसको इंपोर्ट के आपने अपने एडिटर पे लेके आना, उसको हम इंपोर्ट लिखते हैं, इसकी ग्रामर ऐसी है। आपने इंपोर्ट लिखना है, नमपाई लिखना एज एनपी, के बार बार नमपाई का वर्ड ना यूज करना पड़े। उसको एक निक नेम दिया है एनपी का। तो ये फर्स्ट लाइन इसलिए लिखी है, अगर प्रीवियस कोड में देखें, क्या जवेद दे, जी बाद में शेयर कर दूँ। ठीक है, ये चेक करो इसको क्या मसला होगा। अच्छा, अच्छा, ये प्रीवियस एग्जांपल में देखे मैंने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं बेसिक मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा था। अब थोड़ी सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुझे करनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे उससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने एडिटर पे। लाइब्रेरीज ऑलरेडी है इस मशीन के अंदर, लेकिन वो कहता है कि पहले कॉल करो उस लाइब्रेरी को, फिर उसकी कैलकुलेशन करो। अब इसमें ये कैलकुलेशन करने का, उसके लिए सिंबल्स नहीं है, इनपुट 4 हैं। उसी तरह आपने वेक्टर लिखा, मैंने 1 2 3 4 वैल्यू दिया उन्हें, और लेबल किया आई के साथ। देन डब्ल्यू में वेट्स लिखे, टोटल 12 हैं ये, ठीक है। फर्स्ट रो में वेट्स जो हैं वो इस ब्लू न्यूरॉन के हैं, सेकंड रो में जो वेट्स हैं वो रेड, और थर्ड रो में जो हैं वो आपके पास येलो के हैं। ये मैंने अपने से इनको दिया, आप डिफरेंट वेट्स रख सकते हैं, आप अपने वेट्स रख सकते हैं। बस इसमें ये देखें, ये वेक्टर था तो वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन आपने अगर मैट्रिक्स लिखना, मैट्रिक्स है आपके पास, आपको पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, उसकी रो के लिए एक वेक्टर लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, सेकंड रो के लिए लिखेंगे, और फिर थर्ड के लिए लिखेंगे। ये इसका तरीका है लिखने का, यही ग्रामर फॉलो हो सकती, वरना एरर आएगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, उस मशीन की लैंग्वेज है। तो इसलिए ये डबल ब्रैकेट है, ये देखें यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड। तो ये 2 डायमेंशनल एरे हो गई। अगर सिंगल डायमेंशनल एरे लिखनी है वो तो ऐसे ही लिखी जाएगी पाइथन पे, लेकिन अगर 2 डायमेंशनल लिखनी है तो आपको आउटर ब्रैकेट्स भी लगानी पड़ेंगी, और कॉमा रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे फर्स्ट रो खत्म हो गई है,
फिर सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है इसमें। अब इसमें भी पोजीशन क्या होगी, अब इसमें टू डिमेंशनल है। सो ये अगर हम लेमैन है, हमें पता है हम जो मैट्रिक्स की एंट्रीज होती हैं उनको ऐसे लेबल करते हैं A11, A12, A13, फर्स्ट सिंबल फॉर द रो, सेकंड सिंबल फॉर द कॉलम। इसके पास भी यही इंडेक्सिंग है, लेकिन मैंने कहा था ये जीरो से काउंटिंग करता है, केयरफुल रहना। तो इसमें जो इसकी ये फर्स्ट एंट्री है ना, इसके पास ये डाटा है, इसके पास 0 0, जो नॉर्थ वेस्ट कॉलम है उसे ये 0 0 कंसीडर पोजीशन करेगा, सेव करेगा। फिर जो नेक्स्ट होगी उसको ये 0 1 करेगा। बाकी वर्क ऐसे ही है कि दोनों डायरेक्शन में जो सेकंड सिंबल है वो कॉलम के लिए है, फर्स्ट सिंबल रो के लिए है, लेकिन इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये ध्यान में रखना है। तो ये अब बात मुझे भी पता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। सो मशीन जैसे सोच रही है मैं भी वैसे ही सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 0.8 है, 8 ही है ना, मुझे भी यहां से नजर नहीं आ, 0.8 है। कोई बताएगा इसकी पोजीशन क्या होगी मशीन के पास, हमारे पास नहीं। 0.8 यहां पे है, नजर नहीं आ रहा, ये जो कर्सर है। अब क्या पोजीशन होगी, 2 4 के, ये वैसे तो थर्ड रो है लेकिन इसने 0 से काउंटिंग करनी है, तो इसकी सेकंड रो होगी ये। और कॉलम अगर देखें तो ये थर्ड कॉलम देखने से हमें आ रहा है, लेकिन इसकी काउंटिंग 0 से है तो ये इसको सेकंड कंसीडर करेगा। तो इसके पास ये 2 2 है, ठीक है। हमारे हिसाब से ये 3 3 बन रहा था, लेकिन वो 0 से काउंटिंग कर रहा है तो उसके पास ये है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए अपना कोड जब डिजाइन करते हुए कि ये पोजीशन पे, इस पोजीशन पे कौन सा डाटा सेव है, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट है 0 रो, देन फर्स्ट रो, देन सेकंड रो, फिर है 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, और लास्ट बनेगा थर्ड कॉलम, इसलिए इसकी पोजीशन ये है। अब नेक्स्ट बाइस के लिए मैंने बी लेवल यूज किया है यहां पे, क्योंकि 3 बाइसेस हैं तो उसका भी एक वेक्टर बना लिया मैंने, ठीक है। अब उसमें 0 पोजीशन पे 5 है, नेक्स्ट पे 8 है, और 3 है। क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा मैं यहां पे भी लिखूं, तो आई मेरे पास था 1 2 3, देन डब्ल्यू मेरे पास वेक्टर था, इसमें 3 रोज थी, 4 कॉलम थे मेरे पास, 0.5, देन 0.3, सॉरी 0.2, 0.6, 0.4 फर्स्ट रो, नेक्स्ट इसमें 0.1, 0.9, 0.7, और लास्ट एलिमेंट 0.5 है। थर्ड रो में यहाँ पे है 0.3, फिर 0.3 है, फिर 0.8 है, और 0.1 है मेरे पास। और जो बायस है वेक्टर, उसमें 5 8 एंड 3 है, 5 8 एंड 3। तो अब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये हमें पता है, ये हमने पढ़ी हुई है, लेकिन मशीन को ये नहीं पता। लेकिन वो इस जैसी कैलकुलेशन कर सकती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब उसके पास आई वेक्टर भी है, डब्ल्यू वेक्टर भी है, और बी वेक्टर भी है। इसको इस कमांड से लिखा है, लेफ्ट पे आपको पता है लेबलिंग होती है, सिर्फ नेम होता है, इसका मशीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने उस डाटा को किसी लेबल के अकॉर्डिंग सेव करना होता है। राइट पे इसकी ग्रामर होती है। अब इसमें मैंने लिखा है एन पी डॉट, तो ये जो सेंटेक्स है ये मल्टीप्लीकेशन करता है, ठीक है। इसमें W इज मल्टीप्लाइंग विद I। अब NP स्टैंड फॉर नामपाई लाइब्रेरी है, इसलिए हमने उसको निक नेम दिया था। जो लाइब्रेरी आप कॉल करोगे उसको जब यूज करना है, उसके इनसाइड जो भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनसे पहले आपको NP लिखना पड़ेगा,
अदरवाइज उसको समझ नहीं आएगा ये कौन सा डॉट